पिंकी बकरी। जय विनायक भगवान। અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, આત્મ જ્ઞાન આપ્યું છે, પુણ્યના ઉદયે ભાગ્ય ખીલ્યું છે, અનમોલું આધ્યાત્મ જ્ઞાન આપ્યું છે, પુણ્યના ઉદયે ભાગ્ય ખીલ્યું છે, તારા શરણમાં શાંતિ મળે છે, તારા શરણમાં શાંતિ મળે છે, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, દુર્ગતિના ખાડામાં પડતા બચાવ્યા, આત્મજ્ઞાન આપે જગાડ્યા, દુર્ગતિના ખાડામાં પડતા બચાવ્યા, આત્મજ્ઞાન આપે જગાડ્યા, અવગુણ છોડાવી ગુનિયલ બનાવ્યા, અવગુણ છોડાવી ગુનિયલ બનાવ્યા, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, અમે સહુ આવ્યા તારા શરણમાં, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, અહો નિજ સ્વભાવની ભક્તિમાં રાચું, એના સિવાય કાંઈ ન વાંચું, અહો નિજ સ્વભાવની ભક્તિમાં રાચું, એના સિવાય
તારા ચરણમાં આનંદ મળે છે, તારા ચરણમાં આનંદ મળે છે. ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, ગુરુ અમને તારો, માં અમને તારો. गुरु माँ की ये भक्ति अपने गुरु के प्रति भक्ति बताती है, वैसे ही अपने को अपनी गुरु के प्रति भक्ति बढ़ानी है. अभी ये शिविर हो रही है कच्छ से, तो वो कच्छ के लोगों को अध्यात्म की रुचि बढ़ाने में, जिस लोग में रुचि बढ़ा के आगे बढ़ाने में 2 जन थे. एक मोहन बापा, मोहन भाई खंडोर, और दूसरे रमेश भाई, जो अभी इधर उनका चित्रपट है, रमेश भाई सेठ. लगभग 25 साल पहले 93 में, एक्चुअली 92 में हमारा परिचय हुआ. पत्र व्यवहार से प्रश्न उनके होते रहते. फिर मोहन बापा जब भी बॉम्बे आते थे तो स्वाध्याय करते, उनका प्रश्न रहा या कुछ उनको पूछना रहा तो फिर यही बचाव में सीमा की दीक्षा हुई थी. तभी मोहन बापा, रमेश भाई, बाकी लोग बहुत आए थे, तभी मिले, तभी भी स्वाध्याय हुआ. फिर एक बार हमारा जन्म स्थान, ये तो हमारा पिताजी का जन्म स्थान है, ये एरिया है ना, हमारे पिताजी का जन्म स्थान है. चौबारी, मनफरा, बचाव तालुका में. तो उनका जन्मभूमि में, पिताजी की जन्मभूमि है ये. फिर उधर बहन की शादी में आए होंगे तो 3-4 दिन रुके थे. स्वाध्याय अच्छी तरह से हुआ. वो बापा ने तो बड़ी उम्र थी, फिर बापा के बाद रमेश भाई सक्रिय रूप में स्वाध्याय कराते थे. तो वो ग्रुप का आज जो विकास हुआ है, उनमें 2 पिलर, मोहन भाई और रमेश भाई. तो रमेश भाई की थोड़ा जो स्वाध्याय कराते थे, उसकी छोटी क्लिप उनकी भावना से अपन सब सुनते हैं और उनकी वाणी का लाभ लेते हैं. नमस्कार. नमो हरिहंतांग, नमो सिद्धांग, नमो वैज्ञानं, नमो वज्रायानं, नमो सवसाहुण, येषो पंचनमोकारो सौपाओ गणासनं मंगलानं च सर्वे श्रीमन् पद्मंग वै मंगलम, पद्मंग वै मंगलम. एक સમયનું અનંત આનંદનું વેદન આવે તે પણ હું ત્રિકાળી તત્વ નથી. કેમ કે વેદનનો ત્રિકાળીમાં મારામાં અભાવ છે. એટલા વેદનમાં હું આવી જાઉં તો મારો નાશ થઈ જાય. એક સમયની પૂર્ણ પર્યાયથી પણ હું અધિક છું એવો ભાવ છે. એક સમયનું અનંત આનંદનું વેદન આવે તે પણ હું ત્રિકાળી તત્વ નથી. भगवान ने, सिमंदर भगवान ने, हरिहर भगवान ने समय समय अनंत गुणों परिणमन था. अनंत आनंद नु वेदन आवे, भरचक वेदन आवे तो पण त्रिकाળી तत्व के छे के भाई ई आनंद नु वेदन एनामां आवे. हूँ ई वेदन जेटलो नथी, मतलब हूँ पर्याय जेटलो नथी. हूँ ई वेदन में हूँ आवी जाऊं तो हूँ क्षणिक थई जाऊं. तत्व कोई चीज ने नमतुं नथी भाई. ए सदा एवा ने हूँ एनु ए पर्याय नु जे होते हो, पण एनाथी जीव ने कई लेवा देवा नथी. एक समय नु अनंत नु आनंद, अनंत आनंद नु वेदन आवे ते पण हूँ नथी. केम के वेदन नो मारामां अभाव छे, पर्याय में सद्भाव छे, मारामां अभाव छे.
એટલા વેદનમાં હું આવી જાઉં તો મારો નાશ થઈ જાય, એટલે ત્રિકાળીનો નાશ થઈ જાય. વેદન ત્રિકાળીમાં આવી જાય તો ત્રિકાળીનો નાશ થઈ જાય, પણ એમ 3 કાળમાં બને નહીં. એટલે એટલા એની પર્યાયની યોગ્યતા પાકે તો એને પોતાનાથી સમજાય કે હું ભગવાન છું, મારામાં પહેલા અધુરસ નથી, અત્યારે નથી, ભવિષ્યમાં નહીં હોય, એવો હું અનાદિ અનંત ભગવાન છું. એમ એને પોતાથી બેસે તો કામ આવે. તીવ્ર રુચિ ને તીવ્ર મહિમા હોય તો બેસે. તને કાંઈ આડું જ નથી, તું અજ્ઞાની થયો. અજ્ઞાની પર સામે જોયું, પર્યાયમાં પોતાપણું કર્યું, રાગ દ્વેષમાં પોતાપણું કર્યું, શુભ અશુભ ભાવમાં પોતાપણું કર્યું, એટલે અજ્ઞાની છો. બાકી તો એક સમયમાં જ્ઞાની થવું તો એક સમય છે, બીજો સમય નથી. ધ્રુવ તત્વમાં મારાપણું કરવું કઠણ કામ છે ભાઈ. એ પર્યાયમાં અનાદિનું હું પણ પડ્યું છે. દ્રષ્ટિ ફેરવ તો સમજાય. એ ધ્રુવ તત્વમાં બીજી કોઈ રસ ન હોય, બીજી કોઈ રુચિ ન હોય, બીજો કોઈ મહિમા ન હોય, અને આની પાછળ ગાંડો થઈને પાગલ થઈને એની પાછળ જ એને રસ આવે, એમનો જ રસ આવે, ધ્રુવનો જ રસ આવે. ઈ જ ખપે તો ઈ ચીજમાં એને વિશ્વાસ આવે, એને શ્રદ્ધાવાન ચીજ છું. એકલો ભગવાન છું, એકલો ભગવાન, એકલો ભગવાન, એકલો જાણનાર, એકલો ધ્રુવ 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 ધામના ધ્યેયના ધ્યાનની દખતી ધૂણી ધગાસ અને ધીરજથી દખાવવી. ધર્મ તે ધર્મના ધારક ધર્મીને ધન્ય છે. મંડ્યો રે ભાઈ ધ્રુવ 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 ધ્રુવ. જાણવું સહજ, પોતાનું, પરનું નહીં, પોતાનું. નિરંતર બારે જાય તો હાથમાં જણાય, બારે જાય તો ધ્રુવ જણાય, હાલતા ચાલતા ધ્રુવ જણાય, ખાતા પીતા ધ્રુવ જણાય, નાતા ધોતા ધ્રુવ જણાય, હાલતા ને ચાલતા બોલતા બધી ગમે ત્યારે જુઓ તો આ ભગવાન તો જણાઈ જ રહ્યો છે. ક્યાં કાંઈ કરવાનું છે? કાંઈ કરવાનું જ નથી. મસ્ત મજાનો માર્ગ છે. હું કૃતકૃત્ય ચૈતન્ય ધામ છું, વિકાર મને સ્પર્શ્યો જ નથી, હું ધ્રુવ ધામ છું. એવું પોતાનું અહંપણું આવવું જોઈએ. 24 કલાક સૂતો હોય ને લાંબો થઈને તો કે હું તો આ જણાવું છું. સૂતો હોય તો ભલે, બેઠો હોય તો ભલે, જાગતો હોય તો ભલે, ચાલતો હોય તો ભલે, ખાતો પીતો નાતો ધોતો ગમે વેપાર ધંધા, ગમે તે ઘરકામ, ગમે તે ક્રિયા થતી હોય, એ બધી પૂતગલોની ક્રિયા છે, જીવની ક્રિયા નથી. જીવ 3 કારક ક્રિયા છે. અક્રિય સિદ્ધ બિંબ છે, અક્રિય જ્ઞાનનું બિંબ છે. એકલો જ્ઞાનથી સબર ભરેલો ભગવાન છે. हो गया. थोड़ी आवाज क्लियरिटी नहीं थी, आपको थोड़ा श्रम पड़ा होगा. गुजराती था, એટલે गुजराती भाषा ही थोड़ी स्पीड वाली है. हमारी भाषा होती है ना, हिंदी के और गुजराती में थोड़ा फर्क है. तो गुजराती भाषा में थोड़ा स्पीड, बोलने की भाषा, हमारे शब्द थोड़ा स्पीड से निकलते हैं. तो थोड़ा आप लोग को प्रैक्टिस नहीं होगी तो थोड़ा, लेकिन भाव बहुत अच्छे थे. भाव जो आपने सुना होगा तो वो पहले पर्याय और द्रव्य की बात ली कि ध्रुव स्वभाव में पर्याय का अभाव है और पर्याय में क्षणवर्ती पना होने से वो त्रिकाली ध्रुव के साथ एक पना हो ही नहीं सकता. त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि करने की बोली. पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, यानी सम्यक दृष्टि. तो द्रव्य की महिमा में उन्होंने पर्याय को गौण कराया. पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है. हाँ, ऐसा उल्टा मत लेना. पर्याय को गौण करके त्रिकाली जो शाश्वत स्वभाव है उसकी महिमा, वो भाव से उन्होंने पर्याय को गौण करके बोला कि पर्याय की ओर नजर नहीं कर. जो पर्याय नहीं होती तो ऐसे क्यों बोलते कि उसकी ओर नजर नहीं कर? है तो बोल दे ना, पहले तो है का स्वीकार करा के फिर बताया कि उसकी ओर मत देख, द्रव्य की ओर देख. ले पर्याय का अस्तित्व तो है लेकिन समयवर्ती है. समयवर्ती होने से वो मैंपना का विषय नहीं है, आश्रय करने का विषय नहीं है, क्योंकि वो नाशवंत है ना, और स्वयं खुद आश्रय करने वाली है.
जो आश्रय करने वाली हो तो उसको तो कोई आश्रय चाहिए, तो द्रव्य उसका आश्रय है और द्रव्य का आश्रय पर्याय करती है। पर्याय पर्याय का आश्रय करे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्षण में तो चली जाती है। और पर्याय का आश्रय का भाव खड़ा रहे तो मिथ्यात्व रहेगा और शांति नहीं आएगी, क्योंकि आकुलता रहेगी। परिवर्तनशील है ना, परिवर्तनशील का आप आश्रय कर ही नहीं सकते हो। फिर भी अनादिकाल से कर रहे हैं, अनादिकाल से कहाँ खड़े हैं? पर्याय में खड़े। अपन ये समझते हैं तो भी पर्याय में खड़े हैं कि पर्याय द्रव्य का आश्रय कर सकती है, पर्याय आश्रय योग्य नहीं है, पर्याय का आश्रय हो नहीं सकता है, पर्याय परिवर्तनशील है, पर्याय नाशवंत है, पर्याय क्षणिक है, पर्याय का भरोसा करना नहीं। फिर भी अपनी दृष्टि कहाँ रहती है? तो समझा क्या? क्या समझा? विवेक नहीं आया? खाने में अभी कोई बोल दे कि जहर है, खाना छोड़ेंगे? खाना नहीं छोड़ेंगे। जहर है तो नहीं छोड़ेंगे, खाना तुरंत छोड़ देंगे, वो जहर वाला नहीं खाएंगे, क्योंकि जहर वाला अरे जहर है। पर्याय क्षण भंगुर है, फिर भी पर्याय दृष्टि नहीं छूटती है, क्योंकि पर्याय को पर का बहुत महिमा है, या द्रव्य की ओर कभी इसने देखा नहीं है। द्रव्य की ओर देखा ही नहीं है कि द्रव्य कैसा है, द्रव्य की महिमा ही नहीं आई है, द्रव्य का विश्वास नहीं आया, द्रव्य का समझ भी नहीं है। क्योंकि द्रव्य ऐसी चीज है कि वो अब बुद्धि गोचर नहीं है, इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है, वो आपकी अंतर्मुक्त रुचि, आपकी अंतर्मुखता है, आपके अंतर्मुख रुचि से ज्ञान गोचर है। ज्ञान मतलब बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, आत्मा से निकलती हुई आत्मज्ञान, आत्मा का लक्षण रूप जो ज्ञान है, वो ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है। मतलब वो ज्ञान अंदर में देखे तो त्रिकाल जानन 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 स्वभाव ध्रुव ध्रुव, जिसका निरंतर अस्तित्व मात्र एक रूप। कैसा है? एक रूप। एक रूप का मतलब कभी न बदलता, ध्रुव सामान्य एक रूप मैं हूं, ऐसा पर्याय को दृष्टि में आता ही नहीं है। उसको बदलते ऊपर नजर, संयोग के ऊपर नजर, मन के विचारों भाव के ऊपर, तो बोले ये है बदलता हुआ। अरे ये तो है पर्याय परिवर्तनशील, लेकिन वो तू नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है, वो एक अंग है। प्रमाण ज्ञान से देखा है तो आत्मा का ये अंग है, अंगी नहीं है। अंगी शाश्वत है। समुद्र, समुद्र देखा आपने? बॉम्बे वाले ने तो देखा होगा, कच्छ वालों को भी अभी तो है ना, कंडला नदी की है, तो समुद्र देखा होगा ना। तो समुद्र कैसा होता है? एकदम तरंग उछलता, बराबर है, एकदम बढ़ता, कभी पानी अंदर चला जाता। गुजराती में भरती ओट, क्यारेक भरती आवे ने क्यारेक ओट आवे, जवार भाटा, हाँ होता है ना, वो दरिया है ना। गांव एकदम तरंग उछलता, कभी तूफान आ जाए तो तूफान वाला दरिया, कभी एकदम शांत दरिया तो शांत दरिया। तो कि दरिया का आपने ऊपरी स्वरूप देखा, वास्तव में वो दरिया नहीं है। तो कि दरिया नहीं है, दरिया तो कहलाता है, कहलाता है नहीं। तो कि है नहीं और कहलाता है, तो कि एक वो तो तरंग है, ऊपर ऊपर होते हैं। दरिया क्या है? हा? मात्र पानी, पानी पानी पानी, पानी का पिंड, पूरा पानी जो ऊपर से नीचे से तल तक उधर पसरा हुआ एक रूप पानी मात्र, वो दरिया। पर उसमें तरंगे होती है। कब जाता होता है? होता है, वो तो पर्याय होने की बात है। जो वो आता जाता में रहता क्या है?
पानी कभी पानी पना छोड़ता है क्या? उछले तो भी पानी रहता है, बहुत बहुत उछले तो भी क्या पानी पानी तो रहता है ना। पानी पानी का पिंड, वाह, वो जैसे समंदर है वैसे ज्ञान घन आनंद घन शांत, ऐसे अनंत गुणों का एक रूप। अब गुणों का टुकड़ा नहीं, गुण भेद नहीं, एक रूप। जब पानी के अंदर, पानी में स्वच्छ ठंडक निर्मलता जो भी गुण है एक है ना, एक साथ, ऐसा द्रव्य स्वभाव, वो दृष्टि का विषय यानी दृष्टि का विषय यानी श्रद्धा का विषय, श्रद्धा का विषय यानी मैंपना का विषय। मैं आप कौन हो? आपका नाम क्या है? तो ये मैंपना विषय है। जैसे मेरा नाम है, मैं ये हूं, तो इसमें मैंपना करते हैं ना, तो वो जैसे पर में मैंपना, नाम में मैंपना करते हैं ना, वो तो गलत है। उसका इसका नाम है ना, आपका नाम थोड़ा है। मैं आपका नाम पूछा है तो वो जो मैं परा का विषय एक बार आपकी दृष्टि में आ जाए कि ये पर्याय ऊपर ऊपर, विचार ऊपर ऊपर, विकल्प ऊपर ऊपर, भाव आते हैं ना मन के अंदर भाव आते हैं। आज नाश्ता अच्छा था ना? है प्रदीप, नाश्ता बराबर था ना? मैंने किया नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ। बराबर खाया ना? खाया बराबर? तो ये जो गमा अणगमो, अनुकूल प्रतिकूल, अच्छा बुरा बराबर नहीं था, तो कि भाई ये भाव तेरा स्वरूप नहीं है, तू तो सिर्फ जानन स्वभावी है और वर्तमान पर्याय में जानने रूप पर्याय कार्य कर रही है, तू नहीं। तू तो जानन स्वभावी ध्रुव 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 रहता है, और वो ध्रुव की ऊपर ऊपर तरंगे, जैसे दरिया में तरंगे उठती है वैसे ज्ञान तरंगे तरंगे उठती है, और तरंगों में जानना होता है। खाना तो होता ही नहीं हो। नाश्ता किया था क्या? हाँ किया। नाश्ता तो किया ही नहीं है क्या? मैंने किया ना, तो तुमने नहीं किया। एक दो में मैंपना नहीं हो सकता है। आप दो नाम है ना, तेरा नाम मुक्ति भी और वीरती भी, क्यों दो नाम नहीं हो सकता? अच्छा, तो तेरे को बोलू क्या, वीरती बोलू चलेगा? क्यों? तेरा नाम नहीं है तो फिर तेरा नाम है, वही बोला वो तो बोलेगी ना। हाँ, मैं तेरे सामने हाथ रख के बोलू वीरती इधर आ, तो तू ऐसे ढूंढेगी कि मेरे पीछे बैठी क्या। तेरे सामने बोला, तेरे हाथ ऐसे करके बोला तो ही, और हाथ पकड़ के बोले वीरती, तो भी क्या करेगी? मैं वीरती नहीं हूं, मैं मुक्ति हूं। बराबर? वैसे मैं मन नहीं हूं, मैं पर्याय नहीं हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण परमात्मा। मैं परा करो पहले। अब बोले बुद्धि से आता है, बुद्धि से स्टार्ट तो करो, अटकना नहीं। बच्चे थे ना, बच्चे अपन साव साव एकदम नया जब नाम रखा ना, तब लोग सब बुलाते होंगे ना प्रिया प्रिया, मुक्ति मुक्ति, तो आप तब बुद्धि से ही स्वीकारते थे। स्टार्टिंग आपका बुद्धि से ही था, फिर धीरे 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 रोज 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 सुनते 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 इतना प्रिया प्रिय लग गया, प्रिया को अपना नाम प्रिय लग गया कि अभी कोई दूसरा नाम बोले तो अप्रिय हो जाता है। रोज का दिल से, अंतर की रुचि से ऐसा एकत्र हो गया कि उस नाम से कुछ बोले तो कैमरा सामने हो तो पता चल जाए, चेहरा बदल जाए, अच्छा बोले या बुरा बोले, चेहरे में फर्क पड़ जाता है। क्यों? नाम बोला हमने, आपको क्या लेने देना है? आपको तो बोला नहीं, हमने तो प्रिया को बोला ना, आपको क्या लेने देना है? तक मैं प्रिया हूं,
मेरे को ऐसे क्यों बोल सकते हो? कितना एकत्व हो गया देखो। वैसा एकत्व गायक का करना है, किया है ना नाम का। दिशा बदल दो, स्थान बदल दो, कैसे भी पर्याय आवे, पर्याय परिवर्तन वो मैं नहीं, संयोग जो भी आया वो मैं नहीं, मैं एक अखंड जानन देखन हारा, ध्रुव ध्रुव स्वभाव त्रिकाल वो मैं हूं। तो फिर अभी उन्होंने बोला ना कि कोई भी घूमते हो फिरते हो चलते हो खाते हो पीते हो जाननहार, जाननहार जाना कि मैं ध्रुव हूं और जानने में वही आ रहा है विश्वास। पहले विश्वास से, अब बोले कि एक तो हमको फील नहीं होता है, विश्वास तो आ रहा है कि नहीं। पहले स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई बात नहीं, पहले विश्वास तो लाओ कि मेरे को ये जो जान रहा है तो मैं हूं आत्मा हूं शरीर से भिन्न हूं। ध्रुव स्वभाव की प्राप्ति का स्टेप भले अंदर में आते रहेगा, पर रुचि से करते रहेंगे तो, घबरा के छोड़ देंगे ना तो नहीं पहुंच पाएंगे। जहां भी जाना हो स्टार्टिंग में थोड़ा कठिन लगे, रास्ता कठिन आ जाए तो आप घबराहट के छोड़ दे तो नहीं पहुंच पाएंगे। समझिए, भगवान के दर्शन करना हो, भगवान गिरनार जी है और गिरनार चढ़ना पड़े, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता, सीढ़ियां भी नहीं बनी हो तो स्टार्टिंग में तो कष्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कष्ट से ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर चढ़ गए और भगवान के दर्शन हो गए, भगवान मिल गए, फिर तो इस चढ़ने का कष्ट भूल जाएंगे कि नहीं? वैसे समझने में थोड़ा कष्ट पड़ेगा, अनंत काल से नहीं समझा हुआ नई चीज लगेगी आपको, कठिन भी लगेगा। नए लोग को बोल रहा हूं, तुम लोग तो अभी यूज टू हो गए, तुम तो यूज टू हो गए ना सुनने में। नए लोग को बोल रहा हूं कि कठिन लगे तो घबराना नहीं, छोड़ मत देना। कोई तुम्हारा पुण्य जागा है तब तो ये कान पे बात आ रही है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है, अपन पहले दिन स्कूल में पढ़ने गए थे ना, पहला दिन फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, सब आ गया था, ABCD 1 2 3 पेन हाथ में लेके आ गया था क्या पहले दिन? पहले 5 6 महीना तो ऐसे ही जाता है, स्कूल जाओ कभी रोते रोते जाओ, कभी कभी नहीं जाओ, कभी जाओ तो उधर चॉकलेट के लिए जाओ, हाँ? बराबर ने? फिर जाते 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 वैसे ये नए लोग घबराना नहीं कि यह ध्रुव ने आत्मान परमात्मा ने मैं आत्मा भगवान ने पर जनातु नहीं, शब्द तो उनके लिए नया है। तो उनके लिए तो ये, जैसे अपन स्कूल में गए थे अभी अपने लिए नया था ना, ABCD अ क ग जो भी गुजराती पढ़े तो वो नए थे। उसमें भी चलो अपनी मातृभाषा है तो थोड़ा शब्द सुना होगा, लेकिन इंग्लिश तो सुनी ही नहीं होगी। फिर भी रोज पढ़ते पढ़ते सीख गए कि नहीं? पहले दिन से घबराहट के छोड़ दिया होता तो कभी कभी भी आप पढ़ पाते? तो जिनवाणी में जो बात आती है वो अलग अलग अपेक्षा से होती है। बात इतना ही है कि अपेक्षा समझ में आ जाए, सब समझ में आ जाए, लेकिन अपनी बुद्धि में महापुरुषों जो एंगल से जो अपेक्षा से कहते हैं वो तुरंत समझ में नहीं भी आवे, थोड़ा श्रम भी पड़े, क्योंकि अपनी बुद्धि इतनी प्रैक्टिस वाली नहीं है, तैयार नहीं है, तो घबराना नहीं, उनके ऊपर विश्वास रख के धीरे 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 समझने का प्रयत्न करना। अपेक्षा समझ में आ जाए પછી इजी समझो, फटाफट अपेक्षा समझ में आ जाए, फटाफट इजी થઈ જશે, फटाफट। बच्चा जन्मता भी अपेक्षा बड़ा होता है ना थोड़ा, फिर ऑटोमेटिक सब संबंध मम्मी पापा से दोनों साइड का संबंध बैठ जाता कि नहीं? ये तो ये काका है चाचा है, ये मामा है मामी है नाना है नानी है दादा है दादी है बुआ है मासी है। सेंटर में क्या? सेंटर में कौन? मम्मी पापा। मम्मी पापा के रिलेशन है ना,
तो वो रिलेशन आपके मम्मी पापा को पहचानते हो तो आप आपकी नानी को पहचान पाएंगे ना। तेरे को तेरी मम्मी की पहचान नहीं होगी तो कि तेरी मम्मी की मम्मी है, पर मेरी मम्मी कौन है, मैं तो मेरी मम्मी को ही नहीं जानता हूँ, तो कहाँ से पहचानेंगे। तो अपेक्षा नहीं समझ में आएगी, ये अपेक्षित बात है ना। मम्मी की मम्मी है, मम्मी की पहचान नहीं हो तो नहीं आएगी। वैसे तू त्रिकाली ध्रुव है और ध्रुव की पहचान नहीं होगी तो अपेक्षा नहीं समझ में आएगी कि मैं करता हूँ, मैं तो निष्क्रिय हूँ। तो कि भाई ये मम्मी के संबंध आया कि मम्मी की मम्मी है, मम्मी के पापा है, मम्मी की बहन है। वैसे त्रिकाली ध्रुव का स्वभाव है ये, मैं आत्मा हूँ तो मैं त्रिकाली हूँ। जो समयवर्ती है, ऊपर ऊपर तरंग है, वो तो आत्मा का अंग है, मूल स्वरूप नहीं है। इस तरह से आप समझेंगे तो धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो है, अपेक्षाओं समझने की प्रैक्टिस है। खाली अपेक्षा समझाना, यथार्थ कोई समझाने वाले मिल जाए तो आप तो एक्सपर्ट हो। ये तो छोटे बच्चे की जिसकी सगाई हो जाए, खाली सगाई सगाई हो जाए, शादी हो जाए, फिर फट 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 संबंध पता चल जाता है। ये कौन है, ये मेरे सास है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे देवर है, ये मेरे जेठ जी है, ये मेरी ननंद है। अरे कल तक तो तू कहीं बोलती नहीं थी ना, आज कैसे अपेक्षा सब आ गई तेरे को। समझ आया कि ना आया। अपेक्षा कैसे अपेक्षा लग गई, एक पकड़ में आया तो सब अपेक्षा समझ में आ गई कि नहीं। ये प्रैक्टिस है आपको, बहनों को भाइयों को सबको प्रैक्टिस है। अपेक्षा समझने की प्रैक्टिस तो है, बराबर अपेक्षा समझेंगे ना तो सब समझ में आएगा। आत्मसिद्धि की एक गाथा है, कौन सी गाथा है बोलो। जा जा जे जे योग्य छे तहा समझવું તે ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जने। जा जा जे जे योग्य छे, अपेक्षा, जिस अपेक्षा से बात की हो जिनवाणी में, उस अपेक्षा आप समझें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिनागम है ना, अच्छा वस्तु स्वरूप भी ऐसा है कि वस्तु स्वरूप अनेकांत है, अनंत गुणात्मक है ना। तो अनंत गुणात्मक होने से उसको कहने वाली स्यादवाद वाणी अनेकांत रूपी आएगी। जैसे बाहर के सगा संबंध में भी सापेक्ष है ना, मम्मी की अपेक्षा है आप लगाते हो, पप्पा की अपेक्षा है ये संबंध, फिर सास हस्बैंड शादी करी तो हस्बैंड अपेक्षा है, क्या वाइफ अपेक्षा है, उसके साथ शादी करी तो संबंध आया ना, अपेक्षा लगी ना, बराबर ने। तू बोले तेरी सास है, तेरे साला भी है, मैं बोलू, मैं बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोल सकता हूं। समझ में ना, शादी नहीं की तो वो अपेक्षा कहां से आएगी। वैसे ही अपेक्षा है सापेक्ष है, तो जो भी जिनवाणी में कथन है वो सापेक्ष है। तो आप घबराना नहीं, घबरा जाएंगे ना तो आपके वो समझने का दरवाजा बंद हो जाएगा पहले से ही कि नहीं ये तो हाई बात है, ये तो आत्मा परमात्मा की बात है। अभी तो हमको तो कहाँ परमात्मा, हम तो राग द्वेष होता है, बेचैनी होती है, मोह ममता होती है, मेरा तेरा होता है, और बोले तू परमात्मा है। अपेक्षा नहीं समझाए तो बेचैनी होगी ना, पर अपेक्षा समझ में आएगी तो फिर तो बोले ना सहज सरल हो जाएगा। अपेक्षा समझ में आ जाती तो जिनागम जिनेश्वर भगवान की वाणी सापेक्ष होने से, खरेखर तो देवगुरु शास्त्र और कुछ नहीं करते हैं, अपने को अपेक्षा समझाते हैं और फिर एक दूसरा एक दवा देते हैं, मुख्य गौण, किसको मुख्य करना किसको गौण करना, वो मेन है। मुख्य किसको करना, अपेक्षा तो समझा दी, फिर मुख्य गौण। तो अध्यात्म शास्त्र में स्वभाव को मुख्य किया है। स्वभाव
त्रिकाली स्वभाव, आत्मा का मूल स्वभाव, उसको मुख्य किया है। એટલે उसकी मुख्यता से बात आएगी। और व्यवहार शास्त्रों में समझिए, उसमें पर्याय, कर्म, संयोग, मन वचन का योग, गति, उसको प्रदान करके बात करी तो वो अपेक्षा बात आएगी। समझे? ऋषभदेव भगवान की आप बात समझो, उनकी कथा पढ़े तो भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, बराबर? 100 पुत्र थे ना भगवान को। अभी अध्यात्म शास्त्र ऐसे बोलता है कि भगवान को पुत्र हो ही नहीं सकता, भगवान को पुत्र हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक बाजू आप भगवान बोल रहे हो और एक बाजू पुत्र बोल रहे हो। अपेक्षा समझो तो सब सरल है। अब अध्यात्म में आएगी बात अलग आएगी, और कथा में आएगी तो व्यवहार के संयोग से, उदय भाव से, उदय भाव को भी जीव का बोल के बताया, औदिक भाव। तो उदय भाव की बात आई हो तो जीव का बताया, तो अभी आप अपेक्षा समझ ले तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यवहार कथन से उनका औदिक भाव में 100 पुत्र का उदय था तो कहलाते थे 100 पुत्र के, तो कहलाते थे। कहने की बात, व्यवहार यानी कहने की बात है, कहलाता है। क्यों? कि एक का दूसरे पे आरोपित होता है। व्यवहार क्या है? एक का धर्म, एक का कार्य, के एक का स्वभाव दूसरे में आरोपित होता है। दो द्रव्य के बीच में जब ऐसी बात आती है तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में उसका आरोपित भाषा में बोला जाता है, तो वो है व्यवहार। तो व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान छे, એટલે मतलब व्यवहार भाषा भी होती है, बाह्य व्यवहार होता है जानना। ये सब गुरु ये बताते हैं, बस अपेक्षा समझा के मुख्य गौण कराते हैं कि व्यवहार व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। समझे? तो जानने का ये व्यवहार में होता है संबंध सब। आदरेलो प्रयोजनवान आदरना, अपनापन करने का, वो तो त्रिकाली ध्रुव, मेरा स्वभाव कि जो मैं हूं, मैं मेरे साथ ही रह सकता हूं ना, और मेरा तो मेरापन मेरे में ही होगा। पर का मेरापन कितना भी करो, बंगलो बाजू का एकदम अच्छा है, पड़ोसी का, तो मैं अपना कर सकते हैं ना। आपको अच्छा लगा ना, आपको बहुत अच्छा लगा उसका, मैं अपना कर रहे जाओ। क्यों? एक लौकिक व्यवहार में भी संयोग में है तो उसको ज्ञान से जानते हैं, लेकिन मैं अपना नहीं करते हैं। वैसे हा, मैं तो बोलने में लग गया, मेरे को तो ये बोलना था। व्यवहार में बोला जाता है, वो व्यवहार की भाषा है, तो ये जाने लो प्रयोजनवान निश्चय है, वो मैं अपने का विषय है। फिर अपन वापस डिटेल में लेंगे। अभी जो अपना आज जो शिविर के आपको ये मिला है, मेरे को भी मिला है, इसलिए आपको मिला है कि नहीं? मिला है ना? नहीं मिला तो ले लेना। आत्मा आराधना, अपन इधर क्या करनी है? अपने आत्मा की आराधना। वापिस आत्मा यानी मेरी आराधना, ब्रैकेट में क्या लेने का? मेरी आराधना, आत्मा आराधना नहीं, मेरी आराधना। तो उसमें नियम तो बहन समझा देगी आपको, मेरे को उसमें से खास क्या समझाना है। एक 15 मिनट का जो है 4 नंबर का निज अवलोकन, सुबह और शाम 15 मिनट करना है। निज अवलोकन 2 प्रकार का है, जो एकदम नए हैं तो उनको पूरे दिन में, गुजराती बोलू? ठीक है, गुजराती મને ધ્યાન ના રહે, બોલતા આ બાજુ નજર જાય આમ થઈ જાય, ગુજરાતી દેખાઈ જાય ગુજરાતી આવી જશે। 15 મિનિટ નિજ અવલોકન એટલે કે જે હવે
સવારે કરો તો આખી રાતમાં જે રાગ દ્વેષ થયા હોય કે આકુળતા થઈ હોય કે જે ભાઈ રાગ દ્વેષના પરિણામ થયા હોય તો એનું વારંવાર અવલોકન કરવાનું અને ભાવથી પ્રતિક્રમણ કરી લેવાનું. કરે હું તો શુદ્ધાત્મા છું, આ સંયોગમાં કેમ ફસાઈને મેં રાગ દ્વેષ કર્યા, નવા લોકો માટે. હા, એવી રીતે પોતાને. અને બીજું કંઈ સવારના હોય તો સ્વાધ્યાયમાં કાલે જે આવ્યું હોય એના ઉપર વિચાર ચિંતન કરવાનું અને એમાં પોતાના આત્માને વારંવાર જુદો પાડવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. બીજા જે અભ્યાસી છે એને નિજ અવલોકન કેવી રીતે કરવું, તો એની જે ઉપયોગની જેટલી અંતર્મુખતા આવી હોય, જેટલું અંદરની સ્ટેજ હોય, એ હિસાબે આ બધું કુછ હિન્દી આવી જાય આ બધું એ હિસાબે કરવાનું. એટલે કે વર્તમાન અવસ્થા મારા સ્વભાવને મેં કેટલો જાગૃત રહ્યો, મને ધ્રુવ કેટલો યાદ રહ્યો, ધ્રુવમાં મારી શંકા છે કે નિસંગ છું, નિસંગ છું તો મને મારી અંતર્મુખ પ્રેક્ટિકલ જેટલું પ્રેક્ટિકલમાં પહોંચ્યો તો મને જ્ઞાન વેદન જાણનાર કેમ ન રહ્યો. અવલોકન કરીને પોતાની ભૂલો પકડવાની. જ્યાં ભૂલ થઈ ત્યાં પોતાને થોડો, બાળક કાંઈ મોટી ભૂલ કરે તો માં કેમ થોડોક ઠપકો આપે ને, ગુસ્સો કરે ને, નહીં એવી રીતે નહીં. બસ તું જાગૃત રહે, ગમે તે અવસ્થા આવે, ગમે તે પર્યાય આવી, ગમે તે ઉદય ભાવ આવ્યો, તું પરમ પાણામિક પરમ ભાવ સ્વરૂપ પરમાત્મા, એમાં બસ આજ પૂરા દિવસ હવે જાગૃતિ રાખીશ. સાંજે થાય તો આખા દિવસની ભૂલનું બંને રીતે સમજી ગયા. ધ્યાન. હવે ધ્યાનમાં જે રૂટીન રોજના અભ્યાસી હોય, જેને ગુરુમાં તો ધ્યાન વધારે વ્યવસ્થિત સમજાયું છે, જે બોમ્બે વાળાને તો વધારે ધ્યાનમાં પ્રેક્ટિસ છે, ગુરુમાં ખુદ પ્રેક્ટિસ કરાવતા હતા અને ખુદ બહુ ધ્યાનમાં વધારે ઉતરી ગયેલા હતા, એટલે એમની અંતર્મુખતા વધારે હતી ધ્યાનના કારણે. તો જેની ધ્યાનની રુચિ, ધ્યાનની ધારા આવતી હોય એને ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા. તો પૂર્ણ જ્ઞાયક ભાવમાં નિર્વિકલ્પ થવા રૂપ ધ્યાન, કે જેટલો સ્થિરતા રૂપ ધ્યાન, અથવા સવિકલ્પ જ્ઞાયકનું ઘોલન રૂપ ધ્યાન, અથવા બસ જે ઉદય ભાવ આવતા હોય છે ભેદ જ્ઞાન કરવા રૂપનું ધ્યાન કરો. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જે તમારી સ્ટેજ હોય, પણ આગળ વધવાની ક્રિયા. અને જે નવા છે, હવે એને ક્યારે ધ્યાન ન કર્યું હોય એને ધ્યાન તો કરવાનું જ છે. હા, છોડી નહીં દેવાનું. એને વારંવાર ચિત્તને એકાગ્ર કરી, હું આત્મા છું, આ શરીર તો અનંતા છૂટી ગયા, એમાં એ છૂટી જશે, તો શરીર મરણથી હું ક્યાં મર્યો, આત્મા તો મરતો નથી, હું તો અમર છું, આનંદ ભાવમાં અનંતા શરીર છૂટી ગયા, હું તો એનો જ છું. એમ પોતાના ચૈતન્યના ગુણોનું સ્વરૂપનું ચિંતન રૂપ ધ્યાન અભ્યાસ કરવો. અટકી નહીં જવાનું, ધ્યાન માની નહીં લેતા. આ તો સ્ટાર્ટિંગ, એકદમ સ્ટાર્ટ, એજી કેજી, ફર્સ્ટ સ્ટાન્ડર્ડ બી નહીં, લેકિન સ્ટાર્ટ કરો ચિંતન રૂપ ધ્યાન. એનાથી પણ ના આવતું હોય તો વૈરાગ્ય ચિંતન કરો. સંસારની અસારતા, અનિત્યતા, સરળતા, ક્ષણભંગુરતા, પરિવર્તનશીલતા, બસ એવી એનાથી સંસારના ભાવથી છૂટો થઈને હું શાંત સ્વભાવી આત્મા છું, સ્થિર સ્વભાવી આત્મા છું, હું આત્મા છું, હું અમર છું, એવી રીતે અભ્યાસ કરજો. તો ધીરે 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 આત્મદ્રષ્ટિ વધશે અને તમારો સ્વાધ્યાય વધશે અને અંતર્મુખ વધશે, તો તમારું ધ્યાન પણ થશે. ગભરાતા નહીં. આ બધી પ્રેક્ટિસ ગુરુમાં, આ બધા રૂલ્સ ગુરુમાં અમારા શિબિરમાં એમને બનાવ્યા કે બધી રીતે ટ્રેનિંગ આપતા હતા, કે ખાલી શાસ્ત્ર વાંચી જવું, સાંભળી જવું એ નહીં, એને અંદરમાં ઉતારવા માટે કેવી રીતે પ્રયોગ કરવા, પ્રેક્ટિકલ કેમ કરવું, એટલે એ નિયમ એમના બનાવેલા છે. અને અભ્યાસ કરો, ગભરાવો નહીં, છોડતા નહીં. હર પલ ભેદ જ્ઞાન કી પ્રેક્ટિસ, 6 નંબરનું. હવે હર પલ તો આપ બોલે એકદમ ગભરાઈ જશો કે હર પલ તો ભાઈ અમને ભેદ જ્ઞાન નથી થતું. ટ્રાય, નવા માટે ટ્રાય, જૂના માટે નો ટ્રાય.
જૂના માટે હું ટ્રાય કરું તો તમે તો આ વર્ષોથી બસ એ જ ટ્રાય 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 નો ટ્રાય. जागृति વધારવાની. स्व पर ना भेद ज्ञान, जो भी हो रहा है पर है, दिख रहा है पर है, मैं हूँ, जानने वाला हूँ, मैं ही हूँ, ये सब पर है पर है. क्यों आप बाहर निकलेंगे चप्पल पहनेंगे ना, किसकी पहनेंगे? स्व पर भेद ज्ञान, स्व पर भेद ज्ञान हो गया कि नहीं? चप्पल अपनी पहनेंगे, दूसरे की नहीं हुई तो दूसरे की पर, वो अपनी, तो स्व को पहन ली. वैसे इधर प्रयोग करो, जो भी दिखता है ऊपर, देखने वाला मैं. फिर खाने में मिठाई आएगी आज, मिठाई होगी ना, सुबह तो मालूम नहीं था कि नहीं थी? अच्छा, तो आएगी ना मिठाई, तो आएगी ना. फिर मिठाई आएगी तो याद नहीं आएगा कि ज्ञान हो रहा है, मैं जानने वाला हूं. बराबर ने? भेद ज्ञान, भेद ज्ञान करो कि मिठाई जड़ पदार्थ में वर्ण गंध रस स्पर्श माने तो ज्ञान, હું તો જ્ઞાન જાણનારો, મને તો એના જ્ઞાનમાં જણાય, હું ક્યાં ખાનારો છું? ખાનારો અલગ, જાણનારો અલગ. પણ હું તો ખાધું ને, અરે પાછી બીજાની ક્રિયા, બીજામાં કહેવાનો વ્યવહાર છે, ભલે માન નહીં, ભાષામાં બોલાય કે તમે જમ્યા, નાસ્તો કર્યો? હા કર્યો, પણ બોલતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું, મેં નથી કર્યો, મેં જાણનાર હું, જાણ્યું. જ્ઞાનથી વિચારો તો જાણ્યું ને, ગાયક ઉપર દ્રષ્ટિ હોય તો मैं तो जाननहार, निष्क्रिय. આ અભ્યાસ એકદમ આપ ગભરાતા નહીં, નવા હોય ગભરાતા નહીં, કરજો, મજા આવશે તમને. અંદરમાં જે શીખેલું છે એ પ્રયોગમાં લેવાની ખબર પડશે. કેમ કે આપણે તો ભાઈ સ્વાધ્યાય એટલે જ્યારે સત્સંગ કરીએ ત્યારે સત્સંગી, ખાવા બેસીએ ત્યારે સત્સંગી નહીં ને. ખાવા બેસીએ ત્યારે આપણે સત્સંગી ક્યાં છીએ? આપણે સ્વાધ્યાય ક્યાં છીએ? તો કે સ્વ અધ્યાય, स्व का अध्ययन करे एवो स्वाध्याय. स्व कभी नहीं है. स्व पाછી हिंदी આવી જાય ક્યારેક, માફ કરના, ગુજરાતી લોકો માફ કરજો, હિન્દી વાળા ગુજરાતી આ તો માફ કરજો, નજર જેની સામે જાય ને તો આવી જાય. स्वाध्याय, स्व अध्ययन. खाती वक्त स्व होता है कि नहीं होता है? હોય છે કે નહીં होता है? ખાતી વખતે સ્વ હોય છે? અરે ખાવામાં તો હાથ ને જીભ ને મન અને શરીર હોય છે ને. ખાવાથી સત્સંગમાં આત્મા હોય છે. આત્મા પરમાત્માની વાત તો સત્સંગમાં હોય ને, ખાતી વખતે થોડી હોય. खाती वक्त तो टेस्ट, क्या मजा है, अरे टेस्टी है, बहुत अच्छा खाना है. कम खाना, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, आप बोले अरे कम खाना बोल रहे हो, मजा आती है, खाने दो ने. ત્યારે સ્વ છે હાજર હો. સ્વાધ્યાય માત્ર સ્વાધ્યાય હોલમાં નહીં. સ્વાધ્યાય હોલ તો જેમ બતાય ને સ્કૂલમાં પડવાનું હોય અને દુકાનમાં પ્રેક્ટિકલ, શોપિંગમાં પ્રેક્ટિકલ, એમ ખાતી વખતે પીતી વખતે वही उदय भाव कहीं पण होय. हर पल तो तक नहीं पहुंच पाएंगे तो कोई बात नहीं, भावना रखो कि हर पल भेद ज्ञान में भावना रखवानी, था એટલું સ્ટાર્ટ કરવાનું. એવી રીતે ज्ञान वेदन की प्रैक्टिस. वो तो स्वाध्याय में आपको समझाऊंगा ज्ञान वेदन यानी क्या. ज्ञान वेदन એટલે શું? હો મારે ગુજરાતી હિન્દી માફ કરજો. જ્ઞાન વેદન સમજાવીશ, પણ તમારે જેને જે સમજાવી છે ને નવાને, તમને નહીં હો, જૂનાને નહીં. પાછા કહે છે કે પંક્તિ બોલી મને સમજાવો, તો કે તને નહીં, તને તો ત્યાં માર્ચમાં સમજાવ્યું હતું, એટલે તે પછી 6 મહિના થઈ ગયા, તો 6 મહિના તો તારે પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ હોય. હા, તો મેં તો નથી કરી, તો ગુનેગાર, અપરાધી, જીરવાળીનો અપરાધ કર્યો, મળેલા જ્ઞાનનો તે વિનય ન કર્યો, વિવેક ન કર્યો, મહિમા ન લાવી, તારા આત્માની હિંસા કરી, જ્ઞાનની હિંસા કરી, આત્માને પરિભ્રમણ વધારી દીધું. असो संत चाहे दिन रात रहे, तद ध्यान महि प्रशांति अनंत सुधा मय जे. प्रणमो पदते वरते जयते, प्रणमो
પદતે વરતે જયતે. પરમ ઉપકારી સદગુરુ દેવનો જય હો. પરમ પૂજ્ય જ્ઞાયક ભગવાનનો જય હો. जिनवानी मातनो जय हो. ओम शांति शांति शांति. अभी नेक्स्ट सेशन 2:45 को है. 2:30 तक यहाँ पर असेंबल होना है. હલો, જય નાયક ભગવાન. આપણું સવારનું સત્સંગ હમણાં પૂરું થયું. હવે આપણે જમવા માટે પ્રસ્થાન છે. 12 થી 1 ની વચમાં આપણે જમવાનું મળશે. તો ત્યાં વિવેકથી જેન્ટ્સ અને લેડીઝની જગા અને ખુરશીઓ અને ચપ્પલ રાખવાની જગા અલગ અલગ કરવામાં આવી છે. જેન્ટ્સની ચપ્પલ હમણાં પણ અને કિચનમાં ને આપણે બધે વચમાં આવી જાય છે, તો સેવકને કામ વધી જાય છે. તો